Hello students, welcome in your social science class. As you know very well that we were reading chapter 18 of civics, the union government, the legislature. We have already discussed about the three level of the government, national level, state level and grassroots level. And we have discussed about the union government, that is called the central government or national government. Union government has three organs: legislature, executive and judiciary. Today we are going to learn about the first organ of the central government or union government, that is called the union legislature. The long struggle for freedom transformed into a mass movement and ultimately succeed in getting freedom or self-rule. Okay, you know very well that British government was ruling over India and our country was not independent. Okay, we were under the control of foreign rule, that was British rule. To get freedom, our country people fought a long time against the British rule or foreign rule. After a long time struggle, we were able to get success and we were able to get independent, and we were able to get our rights, and we were able to get self-rule. It was a dream come true for the people of India who aspired for a democratic self-government. Our country transferred into a democratic self-government. Ultimately, the foreign rule came to an end. We were able to set up a democratic system. So, the Constitution of India laid down the principle of universal adult franchise. Our country government has decided to set up a democratic system. According to Constitution, universal adult franchise right to vote was given to Indian people. According to universal adult franchise, what is the meaning of universal adult franchise? It means that the citizens who are 18 or more than 18 years of age have right to vote. Means the people who are 18 or more than 18 of age, they have right to vote. They can cast their vote. And what are the advantages of universal adult franchise? Number first, it gives the people an opportunity to actively participate in the political process of the country. Earlier, when we were not free and we were under the control of British rule, okay, then the universal adult franchise was not given to Indian people. It means people were not able to actively participate in the political administration of the country. But after independence, people got right to vote, and according to this right, universal adult franchise, people were able to get opportunity to participate in the political process of the country. Number second, they elect their representative who constitute the parliament, okay, that control and guide the union government. Now the people were able to elect their representative, and that elected representative control and guide the union government. And the third advantage is of universal adult franchise, people express their trust in the functioning of our democratic setup. These were the three advantages of universal adult franchise. Now come to the next. The parliament is the legislative organ of the union government, and it consists of president of India and two houses. What parliament consists of? Parliament किससे बनती है? It consists of president. इसमें क्या होता है? President and two house. Okay, first house is Lok Sabha, or that is called the lower house. Its members are directly elected by the people. You know very well that Lok Sabha election held after every 5 years, and all the people who are 18 or more than 18 of age can cast their vote, and by casting their vote they elect their representative. Okay, this system is called directly. Members of Lok Sabha are directly elected by the people.
Got it? Now, second house. We will talk about the second house. The second house is the Council of State, that is known as Rajya Sabha, or it is called the upper house. Lok Sabha is called the lower house or house of people, because people elect the representative directly. Okay, and Rajya Sabha is called the Council of State or upper house. Its member are indirectly elected. It is called the upper house or Council of State. Why it is called Council of State? Because the people of Rajya Sabha are not directly elected by the people. The President of India is not a member of any two houses. Okay, President, third part of that, third, earlier we discussed about the Lok Sabha and Rajya Sabha. Now President, okay, or President of India is not a member of, President is not a member of any house. Okay, President is the not a member of house of Lok Sabha and Rajya Sabha, but he or she, President may be he, male or female, is a very important part of Parliament. Okay, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, बट ये पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नो बिल, वाई द प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस. ओके, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज नो बिल कैन बी बिकम अ लॉ विदाउट हिज और हर अप्रूवल. जब तक प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल नहीं देते, कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता. To ensure the principle of federalism, the Lok Sabha represent the people of India and Rajya Sabha represent the state of India. Okay, Lok Sabha is called the people house. Okay, because the representative of Lok Sabha are elected by the people. That's why these are responsible. Lok Sabha is responsible toward the people, or it is called the people house. And they represent the people of India. They are responsible toward the people of India. But on the other hand, Rajya Sabha represent the states of India. Now, we will discuss about the Lok Sabha. Lok Sabha, that is called the House of the People. The maximum strength of Lok Sabha shall not be exceed 550. 550 से ज़्यादा लोकसभा के मेंबर की स्ट्रेंथ को एक्सीड नहीं किया जा सकता. Out of 530 member elected by the people from different state से 530 जो हैं वो different state से elected किए जाते हैं. Whereas the remaining 20, जो 20 रह गए, are elected from the union territories. Election are based on the secret ballot paper. आजकल voting machine जो हैं, okay, voting machine होती हैं, and candidate get the highest, the person who get the highest vote, जिसको भी highest vote मिलते हैं, नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा होते हैं इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी. कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन जैसे आप किस एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं. जैसे अपना जो है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाते हैं, यानी उस एरिया से जो रतिया फतेहाबाद, ये सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी जो सीट के लिए इलेक्शन लड़े जाएंगे लोकसभा के लिए वो सिरसा से लड़े जाएंगे. ठीक है, पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ है जिस एरिया से इलेक्शन होने हैं, तो सिरसा के अंडर आते हैं. तो सिरसा यानी कि अपने एरिया की बात कर रही हूँ, तो हाईएस्ट उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस पर्सन को हाईएस्ट वोट मिले हैं वो क्या हो जाता है, विनर इलेक्टेड हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड एडुकेटली इन लोकसभा. अब हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अगर डायरेक्टली वोट इलेक्टेड होके, इलेक्शन में इलेक्टेड होके नहीं आती हैं, तो रिप्रेजेंटेड एडुकेटली इन लोकसभा, और लोकसभा के इलेक्शन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, वो किसी भी सीट से अगर जीत नहीं पाते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू नॉमिनेट एनी 2 मेंबर फ्रॉम दिस कम्युनिटी. तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो एंग्लो इंडियन से कोई 2 मेंबर अपनी मर्जी से इलेक्ट कर सकता है, जिसको प्रेसिडेंट अपनी रेपुटेटेड मानता है या उसकी इमेज अच्छी इमेज होती है, उसको वो कोई 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता है. सम सीट्स आर रिजर्व्ड. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन की. सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स
Person belong to these community or category. The person who belong to ST and SC कैन ओनली कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी. अब सिरसा बेटा जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आ जाता है. आपका रतिया भी जो MLA के इलेक्शन होते हैं रतिया से, ये भी रिजर्व एरिया में आ जाता है. यहाँ पर सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी और जो रतिया में MLA के इलेक्शन होते हैं ये रिजर्व में आ जाता है. यहाँ पर जो कंटेस्टेंट हैं यानी जो पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो SC और ST ही हो सकते हैं. जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड है SC और ST के लिए. ओके बेटा. बट द इलेक्टोरेट इज जॉइंट विच mean all the eligible voters in this constituency have right to vote without any discrimination. और यहाँ पर जो इलेक्टोरेट है वहाँ इलेक्शन जो होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कोई पार्शलिटी नहीं की जाती है. द पर्पस बिहाइंड सच अ रिजर्वेशन, ऐसा रिजर्वेशन क्यों दिया गया है सिरसा को? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसी बहुत और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनको क्यों रिजर्व एरिया किया गया ST और SC के लिए? सो दैट टू असिस्ट एंड अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है ST और SC, इनको अपलिफ्ट किया जाए, इनको भी प्रॉपर इनका रिप्रेजेंटेशन मिल सके और इनको सोसाइटी में इनका प्रॉपर प्लेस दिलाया जा सके. और मेन बात टू ब्रिंग दैम इन टू द नेशनल मेन स्ट्रीम, और इनको मेन स्ट्रीम यानी जनरल कैटेगरी के साथ भी इनको मिलाया जा सके. ओके. Why the reservation? What is the purpose behind the reservation? Number 1, to assist the ST and SC. Number 2, to uplift the weaker section of the society. Number 3, to bring them into a national mainstream. 3 purpose हैं इसके. Okay, got it? What do you mean by reservation and what is the purpose behind such a reservation? Okay, you have to prepare a question. What do you mean by reservation and what is the purpose behind what are the purposes behind the reservation? Got it? अब आपके डू यू नो में दिया हुआ है फैक्ट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन 16th लोकसभा का डेटा दिया हुआ है आपके पास. लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं. ओके. एंड लोएस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्किम की, मिज़ोरम की और नागालैंड की. ओके. यानी कि पार्लियामेंट में लोकसभा में सिक्किम का 1, मिज़ोरम का 1 और नागालैंड का 1 ही पर्सन इलेक्ट होके जाता है, और अदर हैंड यूपी से 80 पीपल इलेक्ट होके जाते हैं. ओके. एंड द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज़ 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसकी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज आ जाती हैं, और अदर यूनियन टेरिटरीज है 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती हैं. और हरियाणा की सीट कितनी है? 10. गॉट इट? द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन, वीमेन के लिए रिजर्वेशन का क्या प्रोसीजर है, इज़ ऑल्सो बर्निंग पॉइंट दीज डेज. रिजर्वेशन वीमेन भी चाहती हैं कि उनका 33 जो है वो उनका रिजर्वेशन हो चुका है, काफ़ी देर से जो रेजोल्यूशन पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है कि वीमेन को 33% रिजर्वेशन है, लेकिन अभी 50-50 चाहिए ना. ठीक है. सिंस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री दैट इज़ वुमेन, आधी जो पॉपुलेशन है वो वीमेन की है, बट रिजर्वेशन सीट्स कितनी है? सीट वीमेन की पार्लियामेंट में कम है. दैट्स वाई वीमेन भी रिजर्वेशन चाहती हैं कि उनकी सीट भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में बहुत लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर उनकी भी सीट रिजर्व की जाएं. और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही वीमेन रिजर्वेशन बिल भी पास पार्लियामेंट में हो जाएगा. ओके बेटा. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा? First, in order to become a member of Lok Sabha, the candidate must have the following qualification. Number 1, he or she must be a citizen of India. पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए. Number 2, he or she, whether male or female, must have completed the age of 25 year. वो 25 year से कम नहीं होना चाहिए, completed होनी चाहिए 25. अगर एक दिन भी कम है तो उसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा. Number 3, his name should be in voter list. ओके. उसका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, ही मस्ट बी पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट.
पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि कोई भी पर्सन, उसके लिए क्वालिफिकेशन मीन्स नॉट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड की हुई हैं। ओके, जैसे कोई पर्सन मेंटल ना हो, ओके, दिवालिया, मतलब उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ऐसे ना हो कि उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी ना हो और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई हैं, उस क्वालिफ़िकेशन को वो कैंडिडेट फुलफ़िल करता हो। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ही और शी मस्ट बी नॉट अ मेंबर और अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मीन्स वो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड ना हो। ओके, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अगर है तो पहले उसे गवर्नमेंट सीट से रिज़ाइन देना पड़ेगा, फिर उसको आपको इलेक्शन, जैसे आपके पिछले जो एमएलए थे रविंद्र बलियाला जी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने पहले अपनी उस पोस्ट से रिज़ाइन दिया था, फिर एमएलए के इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किए थे और फिर वो एमएलए बने थे। तो अगर वो हैं तो उसे पहले अपनी गवर्नमेंट सीट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेन्योर ऑफ लोकसभा, यानी टाइम पीरियड कितना होता है लोकसभा का। द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। नॉर्मली लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है। हाउएवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व इट अर्लियर ऑल्सो, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि लोकसभा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अगर रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को उसके नॉर्मल टर्म यानी 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड। अगर इसकी टर्म को अर्लियर डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब एक्सटेंड कैसे होगा, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में हो सकता है। फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है। कैसे, इफ़ सच अ बिल, और ये भी अपनी मर्जी से नहीं कि एक्सटेंशन कर दो, इफ़ सच अ बिल इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू मीट सम एमरजेंसी सिचुएशन, ये इसके लिए पार्लियामेंट में पहले बिल पास किया जाता है कि लोकसभा को सच सर्कमस्टांसेस आ गई हैं, जैसे कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, किसी अदर कंट्री ने हमारी कंट्री पर अटैक कर दिया है, या गवर्नमेंट की उस वक्त जो कंट्री की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वॉर चल रहा है, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में, एमरजेंसी सिचुएशन में लोकसभा का टाइम पीरियड एक्सटेंड 1 ईयर तक किया जा सकता है। ओके, फॉर द ऑर्डरली एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट द स्पीकर, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ इलेक्टेड बाय, लोकसभा का जो स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अमंगस्ट द मेंबर देमसेल्फ, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं के बीच में से चुने जाते हैं। बट 1 पॉइंट यू शुड नोट डाउन, देयर इज़ अ ट्रेडिशन, हमारे भारत में एक ट्रेडिशन है दैट द स्पीकर इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। जो स्पीकर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी यानी जो रूलिंग पार्टी होती है, इस बार रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो स्पीकर किसका होगा, बीजेपी का। और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन पार्टी, और अपोजिशन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी। तो स्पीकर चुने जाते हैं रूलिंग पार्टी से, मेजॉरिटी पार्टी से, और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो चुने जाएंगे अपोजिशन पार्टी से। गॉट इट। हमारे जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे वो थे जीवी मावंकर, और जो फर्स्ट वीमेन स्पीकर आ जाए पेपर में, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर आ जाए तो आप फर्स्ट लोकसभा स्पीकर लिखोगे, और अगर फर्स्ट वीमेन लोकसभा स्पीकर आ जाए तो आप लिखोगे मीरा कुमार। और प्रेजेंट कौन है, लोकसभा स्पीकर के प्रेजेंट कौन है, श्री ओम बिरला जी। ओके, और प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर, ये पोस्ट बेटा वैकेंट है क्योंकि रूलिंग पार्टी ने तो अपना स्पीकर चुन दिया श्री ओम बिरला जी, बट जो अपनी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है उन्होंने चुनना था क्योंकि अपोजिशन से होता है डिप्टी स्पीकर, तो उन्होंने इलेक्ट नहीं किया, तो ये सीट वैकेंट है। ओके बेटा, आई होप यू गॉट दिस। टुडे वी डिस्कस्ड द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, इट्स 2 हाउस, Lok Sabha and Rajya Sabha, and we discussed Lok Sabha, the house of people, and the qualification to be a member of Lok Sabha, and we discussed about the tenure of Lok Sabha speaker of the Lok Sabha.
Okay, and we discuss about the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha. Okay beta, you read the lesson very nicely. Thank you. Have a nice day.